Very much. And good evening, one and all. And my dear participants and my dear loving students and all the journalists, media, educators, and all the others professionals. Those are the participating in SPU webinar platform, the different part of the country as well as different part of the various country in the world, sir. So again, we welcome to you on PU webinar platform, sir. And today we have the stalwarts and speaker with us, Sri Gopal Narsan is the advocate, and the today's our webinar topic is the Assembly Election 2022 in Uttarakhand. So, Sri Gopal Narsan is the advocate and the graduate in arts and law and the diploma in journalism. He is also have the Vidya Vachispati honorary and the Vidya Sagar honorary degree. He is a senior advocate of the State Consumer Commission and is also former spokesperson of the Honorable Chief Minister of the Uttarakhand government. He is the chief editor of the Divine Mirror Hindi channel and the consultant editor of the Daily News Voice Urdu and Hindi. He is the consultant editor of the News India News channel. He recognized as an independent journalist from the government of the Uttarakhand. He wrote around 16 books and his books is published on the various topic. So he wrote around 16 books and he's also contributed to the various social services. He received the various awards like the Ambedkar National Fellowship by the National Dalit Sahitya Academy and the Motivational Personality Honor by the Sara family and the Prabhakar Sahitya Consciousness Award and the Vikram Shila Hindi Vidyapeeth Bhagalpur conferred with the Indian Pride. Uttarakhand Chief Ministers as a 20 points state member of the country is the honor as a best achievement in India, internationally honored with the Sahitya Kala Academy. So we welcome you, sir, on behalf of the Parul University, on behalf of the Parul University family member, on behalf of the Parul University President, sir, on behalf of the Parul University Vice Chancellor, on behalf of the Parul University Registrar, sir. We welcome you, sir. And now I over to you, Sri Gopal Narsan, sir. Please enlighten to us, enlighten to the participants, enlighten to the all the students on today's webinar topic, the Assembly Election 2022 in Uttarakhand. So now I request you please start and enlighten to us. So on the today's webinar topics. Now I over to you, Sri Gopal Narsan, sir. Please, sir. जी, सबसे पहले तो पारुल विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझको अवसर दिया। और रमेश कुमार रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जो देवभूमि कहा जाता है, इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक दोनों जो राज्यों को देवभूमि का दर्जा प्राप्त है। और जो उत्तराखंड है, ये जो है 3 राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में, जिसमें उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था। जो उत्तराखंड है, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश का ये एक अंग है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, तो सन 2000 में जब ये बना तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी और केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी। तो उस वक्त एक व्यवस्था इंटरिम गवर्नमेंट की हुई थी और पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड में नित्यानंद स्वामी जी बने थे। और उस वक्त जो उत्तर प्रदेश के जो एमएलए एमएलसी थे, उन्हीं को मंत्री बनाया गया था। तो वो बिना इलेक्शन की गवर्नमेंट थी सन 2000 में। और पहला इलेक्शन उत्तराखंड के अंदर 2002 में हुआ, जिसमें बहुत एक पहला इलेक्शन था। बहुत जनता को बहुत, चूंकि उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं था उत्तराखंड का, और इसमें जो जिले थे केवल 13 जिले थे हमारे पास। और जो उत्तर प्रदेश की सीटें, विधानसभा सीटें बड़ी बड़ी सीटें होती हैं, लेकिन चूंकि भौगोलिक स्थिति से उत्तराखंड के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है लेकिन वोटर्स कम होते हैं। जबकि 4 जिले जनपद उत्तराखंड के अंदर मैदानी हैं, जिनमें हम हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून। तो इनकी भौगोलिक स्थिति अलग है और जो बाकी पर्वतीय क्षेत्र उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है। इसी दरमियान जब पहला चुनाव हमारा सन 2002 में हुआ 14 फरवरी को, और इस चुनाव में चूंकि ये बड़ा प्रदेश नहीं है, वो छोटा प्रदेश है, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उस बीजेपी गवर्नमेंट के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटों में से
36 सीटें मिली और बम्पर बहुमत उसको मिला और भाजपा को 19 सीटें मिली। बसपा, चूंकि बहुजन समाज पार्टी का भी इंटरफेरेंस है यहाँ पर है, मैदानी क्षेत्र होने के कारण उधम सिंह नगर और देहरादून में चूंकि दलित बहुत बड़ी संख्या में है, तो यहाँ पर 8 सीटें बसपा को मिली। और उत्तराखंड क्रांति दल जो फाउंडर रहा है, उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाला जो दल रहा है, वो उत्तराखंड क्रांति दल रहा है, उसको केवल 4 सीटें मिली। तो इस तरह से जो पहली गवर्नमेंट बनी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो कांग्रेस की बनी और नारायण दत्त तिवारी जो उत्तर प्रदेश में लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का उनको अवसर मिला उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का बहुत बड़ा काम उत्तराखंड के अंदर किया और उन्हीं के समय में हमारे यहाँ जो सिडकुल बना, चाहे वो हरिद्वार में हो, उधम सिंह नगर में है, तो वो औद्योगिक क्षेत्र उन्होंने स्थापित किए। और जो उत्तराखंड जो है वो मूल रूप से चूंकि प्राकृतिक धरोहर है इसकी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक तो 4 धाम है, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम। तो यहाँ पर चूंकि पर्यटन क्षेत्र के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र भी है, तो दोनों दृष्टि से यहाँ पर जो यहाँ की इकोनॉमी है वो पूरे दुनिया के ऊपर निर्भर करती है, देश के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर 4 धाम यात्रा सीजन चलता है, वो एक बहुत बड़ी आमदनी का साधन है। दूसरा साधन यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी नदियां हैं और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में घराट हैं यहाँ पर जो बिजली पैदा करते हैं। बड़े बांध भी हैं, जैसे टिहरी बांध बहुत बड़ा बांध है। इसी तरह से अभी जो त्रासदी हुई है तपोवन में, वो भी एक बांध था। तो बिजली उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है उत्तराखंड। तो साथ साथ यहाँ पर पर्यटन और बिजली पैदा करने का एक संसाधन होने के कारण एक और संसाधन है यहाँ पर, वो है कि जो पर्वतीय क्षेत्र उसकी वन संपदा, यहाँ पर खनिज तत्व बहुत हैं और 70% जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका वो वनों से आच्छादित है। तो हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के बाद में पहला राज्य उत्तराखंड है जो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है और यहाँ पर फिल्मों की बड़ी संख्या में शूटिंग होती रही है। और जो तत्कालिक गवर्नमेंट है, जो अभी भी गवर्नमेंट है, वो सब फिल्म क्षेत्र को, फिल्म शूटिंग क्षेत्र को बढ़ावा देती है ताकि पर्यटक उनके यहाँ पर आए और इसका जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो। तो यहाँ पर पहला चुनाव 2002 में हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। इसके बाद दूसरा चुनाव 21 फरवरी 2007 को हुआ और इसमें जनता ने भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस को नकारा। इसमें भाजपा ने 35 सीटें प्राप्त की, कांग्रेस को 21 सीटें मिली। बसपा ने 8 सीटें प्राप्त की, पहले की तरह बरकरार रही सीट बसपा की, पहले भी 8 थी, इस बार भी 8 सीटें रही। और जो अन्य हैं वो 6 रहे, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल की कुछ सीटें घटी लेकिन निर्दलीय बढ़ गए। इस तरह से और इस चुनाव में 2007 में कुल 60,82,755 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो यह जो गवर्नमेंट बनी ये बीजेपी की बनी और इसमें सबसे पहले जो हैं जो मुख्यमंत्री बने वो भुवन चंद खंडूरी बने। भुवन चंद खंडूरी इसलिए बने क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने शर्त रखी थी कि उनकी छवि ईमानदार नेता की थी, तो उन्होंने कहा कि भुवन चंद खंडूरी आएंगे तभी हम समर्थन देंगे। तो इस तरह से उनके नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन मिड टर्म ही उस भुवन चंद खंडूरी को हटना पड़ा और फिर भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने, जो महाराष्ट्र में गवर्नर भी हैं, वो मौजूदा समय में गवर्नर है वहां के। तो इस तरह से ये सरकार भाजपा की रही और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस में 2012 में चुनाव हुए तो भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त हुआ और 32 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन भाजपा को भी 31 सीटें मिली, यानी 1 सीट का डिफरेंस रहा। और बाकी अन्य थे इसमें, वो उत्तराखंड क्रांति दल को 1 मिली और बसपा खिसक कर 3 पर आ गई, अन्य 3 रहे। तो इस तरह से बड़ी पेचीदगी थी इसमें,
लेकिन चूंकि 32 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त करके पहला बड़ा दल होने का स्थान पाया, तो उसको आमंत्रित किया गया और यह गठबंधन की सरकार बनी। और इस गठबंधन की सरकार जो बनी, इसमें जो मुख्यमंत्री बने वो बने बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा, जो मुंबई हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। लेकिन जब उत्तराखंड में त्रासदी हुई तो त्रासदी में वो संभाल नहीं पाए और नेतृत्व तो बदलना पड़ा, और तब हरीश रावत जी यहां के मुख्यमंत्री बने। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 2017 में फिर भाजपा की गवर्नमेंट आई और भाजपा को बम्पर सीटें मिली 57 और कांग्रेस 11 पर सिमट गई। मैं इसमें एक बात, इसमें थोड़ा विस्मृत हो गया था कि जो 2007 का चुनाव था, इसमें 3 मुख्यमंत्री बदले इनके। एक मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक भी आए 2007 में, और उनको कुंभ के कारण हटना पड़ा, उन पर कुछ आरोप लगे। तो इस तरह से स्थायी रूप से कोई 5 साल पूरे कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब 2017 में कि त्रिवेंद्र सरकार शायद 5 साल पूरे कर ले। और इस वक्त भाजपा का स्पष्ट बहुमत है, 57 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 11 सीटें हैं, अन्य 2 हैं। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार के आधार पर ये मैंडेट मिला था, अब 2022 का चुनाव है, यहां पर उत्तराखंड में एक स्पष्ट रूप से एक प्रक्रिया है कि एक बार भाजपा आएगी तो एक बार कांग्रेस आएगी, और नहीं दोनों कमजोर हुई तो गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन नेतृत्व तो इन्हीं के पास रहेगा, चाहे भाजपा के पास हो चाहे कांग्रेस के पास हो, विकल्प नहीं बन पा रहा है। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी हस्तक्षेप कर रही है यहाँ पर, और उसने घोषणा की है कि हम 70 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। इसी तरह बसपा ने भी ऐलान किया है, हालांकि बसपा का कोई सीट यहाँ पर फिलहाल नहीं है, लेकिन मायावती जी जो उनकी बसपा की सुप्रीमो है, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि वो 70 विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगी। इसी तरह से उत्तराखंड क्रांति दल, उनका भी कोई अभी एमएलए यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो भी 70 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि 2022 में भी जो मुख्य मुकाबला होगा वो भाजपा और कांग्रेस का ही होगा, और जो ये दल है वैकल्पिक दल, ये केवल 1-2 सीटें, या ये कह सकते हैं कि अगर ज्यादा भी मेहनत हुई तो वो 5-7 संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा वो निर्णायक की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी भी अपना केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपने वजूद को कायम करने के लिए अपनी उपस्थिति दिखा रही है, लेकिन जो आम जनता का जो राय है वो यही है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। और यदि इस समीकरण पर विश्वास करें तो सन 2022 में कांग्रेस की गवर्नमेंट यहां पर आ रही है, ऐसा लगता है। और जो सर्वे बोल रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंसेंटिव जो पब्लिक के में मौजूदा सरकार के प्रति जो अविश्वास है, जो उन्होंने वायदे किए थे और वो वायदे पूरे नहीं हुए, वो नाराजगी, और जो डबल इंजन की सरकार के आधार पर दूसरी बात क्या है कि जो केंद्र की सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों की जो खामी है उसका परिणाम भी राज्य को भुगतना पड़ेगा और ये मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई, साथ साथ उत्तराखंड में त्रासदी जो हुई है उसमें स्थिति को संभालने में, क्योंकि जो अभी तपोवन में जो हादसा हुआ उसमें 24 घंटे पहले वैज्ञानिकों ने ये संभावना व्यक्त की थी कि यहाँ फ्लड आएगा, लेकिन गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर पाई और करीब 200 से 250 लोग रिकॉर्डेड हैं, हालांकि संख्या बहुत ज्यादा है वो मरने वालों की, और अभी बहुत सारे मिसिंग है जिनका पता नहीं है। तो इसका भी इस तरह के जो हालात हैं, भूकंप के जोन में ये राज्य है, इसका तो संवेदनशील है, तो इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं रह कर आती हैं, और पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद भी हम लोग प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई कारगर नीति तैयार नहीं कर पाए हैं। तो ये सब नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा।
जी रावत जी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सर। जी सर जी। यस सर। तो मैंने आपको स्थिति बताई है पूरे राज्य की कि जो संभावना है वो मैंने बताया यस है। सर। आप कोई क्वारी हो तो बताइए, यस पूछिए सर। आप मेरे से जी। नहीं, राज्य की संभावना तो आपने बताई, लेकिन ये जो परिवर्तनशील सरकार है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसके पीछे क्या कारण जी है वो थोड़ा स्पष्ट करें तो अ, उसका लाभान्वित होंगे हमारी हाँ प्रतिभागी। उसका जो कारण है, मेन कारण है वो ये है कि जो मौजूद सरकारें हैं जो चुनकर आती हैं वो जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो है जल जंगल जमीन की। इस को लेकर के हमारे एक वनाधिकार आंदोलन चला रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं किशोर उपाध्याय जी। इसी तरह से जो उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी कहते हैं कि जिस सपनों को लेकर के उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी वो सपने पूरे नहीं हुए हैं, और इस राज्य की लड़ाई के लिए जो शहीद हुए हैं, जो आंदोलनकारी जेल गए हैं, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। इसी कारण पर्वतीय क्षेत्र में भी नाराजगी है, और मैदानी क्षेत्र में चूंकि यहाँ पर गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, जो आंदोलन है उससे प्रभावित ये क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। तो दोनों ओर से जनता नाराज है, और ये नाराजगी न तो कांग्रेस दूर कर पाई, क्योंकि जब कांग्रेस का शासन होता है तब भी आंदोलन होते हैं, और जब भाजपा का शासन होता है तब भी आंदोलन होते हैं। तो ये एक पहला राज्य है क्योंकि इसकी जो मूलभूत समस्या है वो है वनाधिकार। यहाँ पर चूंकि बिजली हम बनाते हैं तो यहाँ की जनता की मांग है कि जब बिजली हम बनाते हैं तो यहाँ की जनता को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। यहाँ के वन वृक्षारोपण करते हैं और 70% जो आच्छादित है वनों से, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है। तो यह भी मांग है पर्वतीय क्षेत्र लोगों की, चूंकि वहां पर संसाधन कम है। और सबसे बड़ी समस्या जो है उत्तराखंड के अंदर वो है पलायन। पर्वतीय क्षेत्रों में घर के घर खाली हो रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अगर हम वहां पर, जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, और वहां पर अगर हम युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करते हैं तो ये पलायन रुक सकता है। लेकिन कोई भी सरकार आज तक ऐसी कोई कारगर नीति नहीं बना पाई जो पर्वतीय क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दे सके। इसी कारण उनको रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और गांव खाली हो रहे हैं, वीरान हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड की है। और यदि सरकार ऐसी कोई ठोस नीति बनाती, चाहे वो बीजेपी बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए, या फिर दूसरे दल बनाए, कि जो युवाओं को उनके घर में ही, उनके गांव में ही अगर स्वावलंबी बना दिया जाए। और इसका बहुत अच्छा साधन मैं बता सकता हूं कि एक तो हमारे यहाँ जो घराट है, जो विद्युत उत्पादन के कुटीर उद्योग के रूप में पनपता है, बहुत सारी नदियां आती हैं, तो घर घर में वहां पर घराट लग सकते हैं। घराट से बिजली पैदा होगी और दो काम होंगे उससे, एक तो बिजली पैदा होगी, दूसरे आटा पीसने की चक्की भी साथ साथ चला सकते हैं। तो युवा स्वावलंबी बन सकते हैं। इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो हमारे देवी देवता हैं, जो देवालय हैं चार धाम में, तो वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना सकते हैं, उनको गाइड बना सकते हैं। और साथ साथ जो होटल उद्योग है उसको डेवलप किया सकता है, साथ साथ जो रेस्टोरेंट डेवलप कर सकते हैं। और युवाओं को पर्वतीय क्षेत्रों में चाहे व्यापार हो और चाहे वहां की जो के प्रति रुझान पैदा करने की है, तो उसके क्षेत्र में आज काम करने की आवश्यकता है। तभी उत्तराखंड आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है। साथ साथ उत्तराखंड जो है वो युवा बेरोजगारी की जो समस्या है यहाँ पर वो दूर हो सकती है। आज अफसोस इस बात का है कि जो इकोनॉमी है वो 4 जनपदों के ऊपर टिकी है पूरे प्रदेश की, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो पूरे राज्य के ऊपर खर्च करना पड़ता है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वहां पर उद्योग लगेगा, वहां पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो मुझे लगता है कि पर्वतीय क्षेत्र पे स्वावलंबी होंगे और इकोनॉमी उत्तराखंड की अच्छी बनेगी।
और जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो वास्तव में यहाँ पर देवत्व कायम होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी रावत जी। सर, जैसा आपने बताया कि हर बार यहाँ पर परिवर्तन की लहर चलती है, हर 5 साल से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो इस बार आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे आएगी, या किन किन विधानसभा क्षेत्रों में कहाँ पर बीजेपी मजबूत है और कहाँ पर दूसरी पार्टियां मजबूत है? आपका क्या विश्लेषण इसको लेकर के, उस पर थोड़ा आप अपना बताएं कि पूरे उत्तराखंड में कितने असेंबली क्षेत्र है, कितने विधानसभा क्षेत्र है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है मुझसे। देखिए, यहाँ पर 70 विधानसभा है और इसमें यह भी सर कि आपका जो विश्लेषण, 1 मिनट सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने जो 70 विधानसभा क्षेत्र बताए, तो आपका विश्लेषण किस आधार पर है? उसका एक जस्टिफिकेशन उसमें निकल के आए, जिससे ये लगे हमारे जो प्रतिभागी हैं, विद्यार्थी को ये लगे कि किसी प्रकार का कोई पक्षपातपूर्ण रवैया हम इस वेबिनार के जरिए नहीं अपना रहे हैं। उसमें एक सटीक जो जानकारी वो निकल के आनी चाहिए, विश्लेषणात्मक जानकारी उसमें निकल के आनी चाहिए। जी जी जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं और एक सीट यहाँ पर एंग्लो इंडियन की है, वो मनोनीत होते हैं। तो इस तरह से 71 विधायक वहां पर हैं, एक मनोनीत होंगे और 70 चुनाव के द्वारा होंगे। जो 70 चुनाव के द्वारा होंगे, तो उसमें पहले 2008 तक यहाँ पर हरिद्वार के अंदर पहले केवल 9 सीट हुआ करती थी और अब बढ़कर वो 11 सीटें हैं हरिद्वार जनपद में। इसी तरह से उधम सिंह नगर में पहले केवल 7 सीटें थी और वहां पर 9 सीटें हो गई हैं। इसी तरह से चूंकि यहाँ पर आबादी के दृष्टिकोण से सीटों की बढ़ोतरी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि किस आधार पर हम बोल रहे हैं, पहली बात तो यह कि परंपरागत रूप से ये एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा ये आती रही है। चूंकि यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है किसी भी गवर्नमेंट से, मैं कह सकता हूं, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उसका जो कारण मैंने बताया पहले ही आपको कि यहाँ पर जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर कोई भी पार्टी अभी तक खरी नहीं उतर पा रही है। लोग चाहते हैं कि जो सपना उन्होंने उत्तराखंड के लिए देखा था कि हमारा खुशहाल उत्तराखंड होगा, घर घर में रोजगार होगा, खुशहाली होगी, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, वो हम सपना पूरा नहीं कर पाए हैं, चाहे पार्टी कोई भी रही हो। इसी कारण से जो वोटर है वो विकल्प ढूंढ रहा है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि राज्य के अंदर 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, तो उसके सामने चुनने की मजबूरी भी है कि एक बार एक पार्टी चुनेंगे और जब उससे नाराज हो गए तो दूसरी पार्टी को चुना जाएगा। ऐसी यहाँ की परंपरा रही है। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि क्या आधार है हमारे पास, आधार स्पष्ट इसलिए है क्योंकि जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने बनाया था, उस मैनिफेस्टो के ऊपर बीजेपी खुद नहीं चल पाई है। इसी तरह से पिछली बार जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके प्रति जो नाराजगी थी वो भी यही थी कि उस वक्त जो डबल इंजन का जो वायदा किया गया था, तो लोगों ने उम्मीद की थी कि केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और अगर राज्य के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट होगी तो आम जनता को राहत मिलेगी और जो योजनाएं हैं विकास की वो फलीभूत होंगी और रोजगार भी मिलेगा और राज्य उन्नति करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक जो भाजपा के खुद के जो लोग हैं वो भी मौजूदा गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं है। अभी इन्होंने कुछ दायित्व दिए हैं, अभी 17 तो आज ही डिक्लेयर किए हैं, इससे पहले इन्होंने कुछ दायित्व बांटे हैं अपने, और वो चुनाव चूंकि आ रहे हैं इसलिए बांटे हैं। अफसोस इस बात का होता है कि जब सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है तो दायित्व आखिरी साल में देने की परंपरा है। इसी कारण से बहुत सारे जो मौजूदा काम है वो नहीं हो पाते हैं। अब देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम है, 20 सूत्री कार्यक्रम में धरातल तक यानी ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल तक जो उसका विकास का पैमाना है, उसके आकलन का काम होता है, उसकी रेटिंग का काम होता है। लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम में भी जैसे सरकार बनती है तुरंत गठन होना चाहिए, लेकिन आज तक वो पूरा गठन नहीं हो पाया है। राज्य के अंदर केवल उपाध्यक्ष हैं, मेंबर तक नहीं है। जिले में भी केवल अधिकारी ही उसमें बैठे हैं, ब्लॉक में भी कोई नहीं है। तो इस कारण से जो सरकारी जो स्तर पर जो काम होना चाहिए उसकी गति नहीं बन पाती। इसी तरह से योजना आयोग वो भी अगर पूरे समय सरकार गठन होने के समय बन जाए तो हम
जो फाइनेंस पोजीशन, जो योजनाएं बनाने का जो काम है, वो अच्छी तरह से हो सकता था। दूसरा मुद्दा यहाँ पर जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है राजधानी का। राजधानी में अभी बीजेपी ने डिक्लेयर किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हम गैरसैंण को बना रहे हैं, लेकिन लोग, जो कांग्रेस का कहना है कि खाली ग्रीष्मकालीन क्यों बना रहे हो, परमानेंट बनाइए। सच बात यह है कि परमानेंट राजधानी कोई बनाना नहीं चाहता, सब चाहते हैं देहरादून के अंदर कि वहीं पर रहें। और आज जो पोस्टिंग अधिकारियों की भी जो पर्वतीय क्षेत्र में होती है, वो लोग फिर आ जाते हैं वहीं पर, और आकर के वो जो देहरादून में जम जाते हैं और मौके पर जाकर काम नहीं होता है। तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसी कारण से जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, इसी कारण से जनता का विश्वास ये पार्टियां जीत नहीं पाती हैं, और अविश्वास के कारण ही ये हालात पैदा हो रहे हैं। और जो बदलाव है वो इसी कारण से है। बहुत सारी जो सर्वे आया है, अभी एक यहाँ पर चैनल ने सर्वे किया, उसके अनुसार भी जो आने वाले 2022 का चुनाव है, जिस तरह से वहां पश्चिम बंगाल का सर्वे आया है, उसी तरह से यहाँ पर भी सर्वे हुआ। तो यहाँ पर जो संभावना व्यक्ति है कि यदि हालात यही रहे तो सन 2022 में कांग्रेस आएगी। लेकिन जो मुझे लगता है, वो मुझे ये लगता है कि स्पष्ट बहुमत शायद किसी को ना मिले, और हमें जो छोटे छोटे दल हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, और फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के अंदर केवल 1-2 बार हुआ है, चाहे वो 2002 में हुआ हो या फिर अब 2017 में, कि जब किसी दल का सहारा नहीं लेना पड़ा, वरना जो बसपा का, उक्रांत का, उत्तराखंड क्रांति दल का, इनके सहयोग से सरकार बनी है। और पिछली जो हरीश राव सरकार थी, वो भी गठबंधन के सहारे थी। गठबंधन के सहारे जो सरकार चलती है, आप जानते ही हैं कि उसमें बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और जो सरकार, जो दल, छोटे छोटे दल जो समर्थन करते हैं, वो मनमानी शर्तें रखते हैं। और मुझे लगता है कि यही जो पॉलिटिकल जो ब्लैकमेलिंग है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। पिछली बार हरीश राव सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश हुई थी, उसमें हालांकि फिर वो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से वो फिर से बहाल हुई सरकार। तो इस तरह से जो निर्वाचित सरकार को गिराया गया था, उसका भी लोगों में गुस्सा है, और शायद वो गुस्सा सन 2022 के चुनाव में सामने आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी राव जी। सर, ये तो क्या था कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी ऐसा ही सब कुछ था, लेकिन फिर से नरेंद्र मोदी जी हमारे भाजपा से वापस से दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो आपका जो ये ग्राउंड जो आप बातें बता रहे हैं, तो उसमें जो डिससेटिस्फेक्शन है का जो आप कारण बता रहे हैं कि कभी आप विधायकों की बात करते हैं डिससेटिस्फेक्शन, कभी जनता की बात करते हैं, तो उसकी कोई तथ्यात्मक जानकारी आप पेश कर सकते हैं कि ये तथ्य है कि ये मैनिफेस्टो था, इस मैनिफेस्टो यहाँ नहीं था। कभी मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी, 1 मिनट सर, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। मैनिफेस्टो जब कोई भी पार्टी जब जारी करती है, कभी भी जारी करती है मैनिफेस्टो, तो मैनिफेस्टो के अंदर आप भी ये मानते हैं, इस चीज को मानते हैं कि सभी प्रकार की जो सारी चीजें हैं, कोई भी पार्टी पूरी कभी नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ पार्टी 80%, 90% किसी चीज को टच कर लेती है। तो आपके पास सभी पार्टियों के क्या मैनिफेस्टो का विश्लेषणात्मक अध्ययन है कि अब जो चुनाव परिवर्तन हुए चुनाव के बाद में, तो उसमें किस पार्टी का मैनिफेस्टो कितना % लागू हुआ, किसने कितना मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें कहीं वो लागू की और उनका पालना भी, वो सब सारी चीजें आप बताना चाहेंगे एक बार मैनिफेस्टो के अंदर पिछले सारे चुनावों की, तो 5-6 चुनाव आप बात करें आरंभ से लेके आप। जी। तो उससे क्या है कि थोड़ा विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक जा सकता है। यदि हम इसी तरीके से परिवर्तन की बात करें कि एक बार बीजेपी, एक कांग्रेस, और 2022 में फिर से आप जब बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है 2022 में वापस से बीजेपी चुनाव जीत करके आ जाए, तो उस समय फिर आप जो अभी विश्लेषणात्मक जानकारी दे रहे हैं, वो उस समय आपकी जानकारी गलत उसमें साबित हो सकती है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी तथ्यात्मक जानकारी को प्रस्तुत करें, जिससे कि जो हमारे प्रतिभागी हैं और जो उनको ये लगे कि हाँ, ये विश्लेषणात्मक जानकारी वो कुछ हद तक आपकी बात उसको सहमत करती हुई व्यक्त होती है। तो उसमें थोड़ा डीप में जाके आप बताएं सर, ये मेरा कहना है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव जो है वो सेंटर के लीडर के आधार पर लड़ा जाता है, और विधानसभा चुनाव की स्थिति स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाता है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
जो ये चुनाव था, पिछला चुनाव, वो डबल इंजन की सरकार को लेकर था, क्योंकि दोनों का लाभ मिल रहा था स्थानीय जनता को, इसलिए बीजेपी को बम्पर सीटें मिली और 70 में 57 सीटें लेकर गए वो। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि भाई मैनिफेस्टो की बात, सन 2002 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो था और वो बीजेपी का भी मैनिफेस्टो था। दोनों ने इस मुद्दे को रखा था राजधानी का मुद्दा कि हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। ये दोनों के मैनिफेस्टो में था। दोनों के मैनिफेस्टो में यह भी था कि हम नए जिलों का सृजन करेंगे। दोनों के मैनिफेस्टो में यह भी था कि हम जो रोजगार देंगे और जो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा उसमें 70% लोगों को, युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह मैनिफेस्टो में था। इसी तरह से यह था कि हम जो पर्वतीय राज्य हैं, जो वनों का है, तो वहां पर चूंकि ये वन क्षेत्र है, अच्छा क्षेत्र है, तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी चीजें उन्होंने, एक तो सड़कों का निर्माण की बात थी, वो उन्होंने एक वायदे किए थे कि हम 4 धाम तक, और दूसरी एयर इंडिया जो हेलीकॉप्टर सुविधा, यात्रियों को सुविधा देने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग की थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब 2002 में तिवारी जी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने उधम सिंह नगर में और हरिद्वार के अंदर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए और एक बहुत बड़ी कंपनियां वहां पर आई और करीब, मैं कह सकता हूं कि करीब 700 यूनिट्स यहां पर उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर आई। लेकिन जो स्थानीय युवकों को रोजगार का मुद्दा था, वो 70% वो पूरा नहीं हो पाया और अक्सर कंपनियां बाहर के लोगों को लेकर आई, एम्प्लॉय बाहर के लाए और स्थानीय जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाया और वही नाराजगी कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुई। और इसी के कारण जो 2007 का जो चुनाव हुआ, उसमें भाजपा जो है वो 35 सीटें जीत करके लीडिंग पार्टी बन गई और भाजपा की सरकार बन गई और कांग्रेस को केवल 21 सीटों पर सब्र करना पड़ा। ये बात है कि अगर आपने कोई वायदे किए हैं, अगर आप उनको पूरा नहीं करेंगे तो पार्टी कोई भी हो, जनता बख्शती नहीं है, जनता बदला लेती है। और चूंकि सबसे बड़ी नाराजगी नरेंद्र तिवारी सरकार के प्रति यही थी कि जो औद्योगिक क्षेत्र लगे थे, जो इंडस्ट्री लगी थी, उसमें जो 70% युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था स्थानीय, वो नहीं मिल पाया। इस कारण युवा नाराज हुए। साथ ही विकास तो बहुत हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी, वो भी एक नुकसानदेह हुई और कांग्रेस के लिए वो घाटे का सौदा हुई। इसी तरह से 2007 में जब बीजेपी आई, तो इसके अंदर भी आपस में इनका सामंजस्य नहीं बैठा पाई है। इसी कारण इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, भुवन चंद खंडूरी जी, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो कोई 5 साल पूरे इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि पार्टी खुद संतुष्ट नहीं थी उनसे और उनको अपना नेतृत्व बदलना पड़ा। 2007 में कुंभ को लेकर बदलना पड़ा। तो ये बात प्रमाणित होती है कि जो सरकार आई है उससे चूंकि खुद पार्टी के लोग ही संतुष्ट नहीं हुए, तो आम जनता कैसे संतुष्ट होगी। तो लोग असंतुष्ट हुए हैं और यही स्थिति कांग्रेस के समय भी रही है। यह सन 2012 में जब उत्तराखंड आपदा हुई, तो विजय बहुगुणा जी, जो उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में बैठे थे और त्रासदी उत्तराखंड में हो रही थी। आम जनता, इतने फ्लड था, इतने लोग मरे हजारों संख्या में, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि दिल्ली में ही थे, तो ये नाराजगी आम जनता की थी और खुद कांग्रेस की थी। इसी कारण से कांग्रेस हाईकमान ने उनको मुख्यमंत्री के दायित्व से हटाया और हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो अगर दल के अंदर ही संतोष नहीं है तो आम जनता में संतोष कैसे होगा, ये एक मुख्य पॉइंट था और इसका नुकसान पार्टी को भुगतना भी पड़ता है, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। दूसरे जो मेन इशू उत्तराखंड का है, जल जंगल जमीन, उसके प्रति कोई भी सरकार रही है वो संवेदनशील नहीं रही है। उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को न्याय नहीं मिल पा, उसके प्रति कोई संवेदनशील नहीं रही है। आज तक उत्तराखंड जो आंदोलनकारी है उनका चिन्हीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया है।
आम जनता में नाराजगी है। तो वो जो नाराजगी है वो वोटों के रूप में फिर सामने आती है। और सन 2022 का जो चुनाव है वो यही प्रमाणित करता है कि जो लोगों की नाराजगी है उसमें कई मुद्दे हैं। नंबर 1, उत्तराखंड आंदोलनकारियों को न्याय न मिलना, शहीदों को न्याय न मिलना, उनके मुकदमों का निस्तारण न होना, आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण न होना, उत्तराखंड में वनों पर स्थानीय जनता का अधिकार न होना, उत्तराखंड में खनन पर स्थानीय जनता यानी अपना घर बनाने के लिए भी वो रेत बजरी सीमेंट नहीं ले सकती। तो वो बहुत बड़ी समस्या है लोगों के सामने और माफिया वहां पर हावी है, इसीलिए लोग नाराज हैं। इसी तरह से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी न मिलना, ये कानून के अंदर वो उनको बंद कर देते हैं। तो ये जो समस्या है कि जो हमारे संसाधन है उस संसाधन को भोगने का अधिकार स्थानीय जनता को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया। और बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हमारे उत्तराखंड में लड़ी गई है वृक्षों को बचाने के लिए। चाहे वो आप सुंदरलाल बहुगुणा हो, चिपको आंदोलन आपको याद होगा, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं आदरणीय बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, उन्होंने वृक्षों को बचाने का काम किया है। इसी तरह से एक वृक्ष पुरुष हुए यहाँ पर जिन्होंने अपने जीवन में 50 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति के लिए बहुत काम हुआ है, लेकिन साथ साथ लोग ये चाहते हैं कि जब हम प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं तो प्रकृति का आनंद भी उठाने का हमें अवसर मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। एक और समस्या यहाँ पर है, वो है मूल निवास की। पर्वतीय क्षेत्र है उसमें भेदभाव का भी कारण है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता है, मैदानी क्षेत्र में स्थायी निवास मिलता है। और इसी तरह से जो एक यहाँ पर जोन 4 क्षेत्र है जो जनजाति क्षेत्र है, तो वहां पर उन लोगों को आरक्षण लाभ है। यहाँ पर 4 भाषाएं हैं, उसमें जौनसारी है, खड़ी बोली हमारी है यहाँ पर, जो आप कह सकते हैं जो कोरवी भाषा कहते हैं, वो हरिद्वार की है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, उधम सिंह नगर की है, एक गढ़वाली है और एक कुमायूनी है। तो 4 भाषाओं का संगम है यहाँ पर। तो जब तक हम अपनी भाषाओं को संरक्षण नहीं करेंगे, अपनी प्रकृति को संरक्षित नहीं करेंगे, अपने रोजगार के संसाधन पैदा नहीं करेंगे, तब तक आम जनता की नाराजगी बनी रहेगी। और उत्तराखंड की जनता है बहुत जागरूक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ की महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो बहुत संघर्षशील है। आज भी 25-25 किलोमीटर दूर तक है, मवेशियों के लिए चारा लाना होता है, वो भी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, और वो अक्सर महिलाएं काम करती हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो चूंकि पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र का एक संगम है, तो यहाँ पर इस मिलीजुली संस्कृति है। तो इसमें जो समस्याएं हैं उनको अलग अलग रूप में देखना पड़ता है। जैसे चकबंदी है, पर्वतीय क्षेत्र की चकबंदी अलग मायने रखती है, मैदानी क्षेत्र की चकबंदी अलग मायने रखती है। दोनों के लिए नीति अलग बनानी पड़ेगी। इसी तरह से जो हमारा आब क्षेत्र है, जब पानी का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सुगम है पानी, पहाड़ में पानी बहुत मुश्किल है, वहाँ पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, वहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है, तो वहाँ पर रास्ते जाम हो जाते हैं। दूसरे जो पर्वत है, हमारा पहाड़ है जो है वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, जितने भी प्राकृतिक हादसे होते हैं वो कच्ची मिट्टी ढह जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, कैजुअलिटी होती है, तो उसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उल्टे हम क्या कर रहे हैं, हम जो पहाड़ है उसको काट रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अब रेल मार्ग बना रहे हैं, और उसको बम से तोड़ा जाता है, जिससे पहाड़ और कमजोर हो रहे हैं। इसी कारण से प्राकृतिक हादसे सामने आते हैं हमारे। तो हमें जो जैसे कि एनजीटी बोलती है, एनजीटी ने बहुत बार रोक लगाई कि हमारा जो इसकी जो ग्रीनरी है, अगर हम जंगल को काटेंगे विकास के नाम पर, अगर हम पर्वतों को तोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो यहाँ की जो प्राकृतिक जो छटा है, जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, उसको ग्रहण लगेगा, और उस ग्रहण की जो नाराजगी है वो आम जनता में देखी जा सकती है। जी बात साहब। जी रावत जी।
आप मुझे सुन सकते हैं सर? तो मैं जो आपसे हेलो? निवेदन कर रहा था कि उत्तराखंड को जो 2022 का जो चुनाव है, उस 2022 के चुनाव में हमें निश्चित रूप से धरातल स्तर पर जो काम करना पड़ता है और उसी का आकलन नहीं, लेकिन करके हम साहब आप जी आपने जो आकलन किया है, लेकिन सर जन जंगल जमीन की बात करते हैं तो नए पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, सब तरीके से विकास भी हो रहा है। लेकिन साथ में सर जो आप बता रहे हैं, तो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है तो उसलिए विकास की भी आवश्यकता होती है, तो ये तो सब एक विकास की प्रक्रिया का भाग है, तो उसे नहीं नकारा नहीं 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 जा सकता। तो आम जन भी इस चीज को, एक मिनट नहीं सर मैं नहीं अपनी बात कह दूं, ये एक विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। और विकास की प्रक्रिया के भाग के अंदर आप देखिए आज कितना विकास उत्तराखंड के अंदर हो रहा है और कितना आगे उत्तराखंड जा रहा है, कितनी पॉपुलेशन हो गई है। पिछले 5 चुनावों की आप बात करें, 25 साल, 30 साल, 40 साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी और आज कितनी हो गई, तो उसके लिए विकास और संसाधन तो जुटाने पड़ेंगे, और विकास और संसाधन जुटाने पड़ेंगे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ साधन है, संसाधन है, उनको अपनाने के लिए कुछ पाना भी पड़ता है, कुछ खोना भी पड़ता है, तो वो एक अलग चीज होगी। तो ये एक विकास का जो मुद्दा है, आई थिंक जनता है वो भी समझती है कि विकास के लिए सारी चीजें जरूरी भी हैं। लेकिन मैं मेन चीज ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से जो कॉमन मुद्दे हैं जो पिछले 5 जो सरकारें बदली हैं, उन 5 सरकारों में कॉमन आज तक रहे हैं? जन जंगल जमीन को छोड़िए, उसके अलावा क्या शिक्षा में पहले पिछड़ा हुआ था, शिक्षा में आगे नहीं आया उत्तराखंड? या हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जल की बात करें, या और जो दूसरे विभिन्न विकास के मुद्दे उनकी बात करें, तो उसमें रेगुलर प्रोग्रेस तो हो ही रही है। इसके अलावा कोई ग्राउंड की आप बात बताएं जिससे कि आपको लगता है कि जनता के अंदर हर 5 साल बाद में रोष आ जाता है उस सरकार के प्रति, वो आप बताएं कि ये कोई स्पेसिफिक कारण उसमें आपको लग रहा है। फिर उसके बाद में हम इसका समापन करना चाहेंगे। जी 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 हाँ बताइए हेलो सर, मेरी बात पहुंच गई होगी आप तक? जो कॉमन मुद्दे उसके बारे में आप बताइए सब, जो कॉमन मुद्दे रहे हो ऐसे। कॉमन मुद्दा तो दोनों का यही रहा है कि हम लोग न तो स्वास्थ्य सेवाएं डेवलप कर पाए हैं। आज पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी चिकित्सक जाना नहीं चाहता। इन्होंने हालांकि जो हमारे कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इन्होंने कंपलसरी किया है कि जो बॉन्ड भरेगा, अगर एमबीबीएस का एडमिशन लेना है तो 5 साल का बॉन्ड भरवाते हैं ये लोग, कि अगर 5 साल बॉन्ड भरेंगे तो आपकी फीस कम होगी। उसके बावजूद भी ये इनके प्रकार ने पर्वतीय क्षेत्र में कोई जाने को तैयार नहीं है। इसी कारण से पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी लचर है। साथ साथ एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन जैसे रुड़की है, रुड़की एजुकेशन का हब है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में एजुकेशन के नाम पर आज भी कई कई किलोमीटर के बाद आप देखें ना कि संसाधनों का अभाव है, तो वहां पर जो डिग्री कॉलेज है वो एक तरह से जो सेफ है उसकी प्राइमरी स्कूल जैसा होगा। तो वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों लचर हैं। और बेरोजगारी, यानी अभी तक जितने चुनाव हुए हैं इनमें ये मुद्दे हावी रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य का रहा हो, चाहे बिजली का रहा हो, और चाहे फिर इसका एजुकेशन का रहा हो, साथ साथ बेरोजगारी का, ये मुद्दे सरकार हल नहीं कर पाई। साथ साथ जो मैंने निवेदन किया था आपसे, दूसरे कि जो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो आप बता रहे हैं कि विकास जरूरी है, विकास मैं मानता हूं जरूरी है, लेकिन मैं 20 सूत्री कार्यक्रम में नरेंद्र तिवारी जो गवर्नमेंट थी उसमें मैं राज्य स्तर पर रहा हूं, उस वक्त जो तत्कालीन वन मंत्री थे उन्होंने वन गुजरों को बसाने के लिए कई लाख पेड़ कटवाए थे। अब जब वो पेड़ कटे तो मैंने उसका विरोध किया था। तो उन्होंने कहा कि हम तो विकास के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। हमने कहा भाई, तो मुख्यमंत्री जी ने माना था इस बात को, नरेंद्र तिवारी जी ने, कि जब वन गुजर वनों में रहने के आदी हैं तो उनको हमें जंगल समेत अलॉट करना चाहिए था, पेड़ भी बच जाते और उनका पुनर्वास भी हो जाता। लेकिन केवल हमने अपने लालच के लिए पेड़ कटवा दिए और उनका मैदान में उनको बसा दिया, तो वो बहुत बड़ी भूल थी गवर्नमेंट की, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूं उसको हमने विरोध किया था इस बात का, क्योंकि वन गुजर वनों में रहने के आदी है। इसी तरह से
पर्वतीय क्षेत्र में अगर वहां की प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में लोग रहना चाहते हैं, वहां के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके पहाड़ को तोड़ करके उनके जो जो खनन करने के बाद वहां की सौंदर्यता को बिगाड़ा जाए, वो उसी सुंदरता में रहना चाहते हैं। तो विकास चाहिए, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर बम विस्फोट करके अपने पहाड़ तोड़ दें। हम विकास के नाम पर हम जितने भी हमारे संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन को नष्ट कर दें, ये कतई जनता स्वीकार नहीं करती। और इसके लिए बहुत बार आंदोलन भी हुए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी खुद आंदोलन करते रहे हैं। टिहरी का जो मामला है, टिहरी जो बांध बना, उसका आंदोलन लगातार जारी रहा। बिजली बनती है, ठीक है, विकास हुआ है, लेकिन अगर ये बांध अगर ईश्वर न करे, क्योंकि ये भूकंप की दृष्टि बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, अगर वो बांध कभी टूट जाए तो दिल्ली भी नहीं बचेगी। इतना बड़ा बांध है वो, उसको भरने में 3 साल लगे थे। तो हमें पहले मानव जीवन है, हम एक छोटे से बांध की त्रासदी नहीं झेल पाए, तो टिहरी को कैसे झेल पाएंगे। और कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता, कोई प्रमाणित नहीं कह सकता कि भूकंप इतना तीव्रता का नहीं आएगा। भूकंप के बारे में कोई भर्त्सना नहीं की जा सकती, वैज्ञानिक ये मानते हैं। तो हमें कम से कम ऐसे विस्फोटक, ऐसी जो जन हानि होती हो जिससे, ऐसे विकास से दूर रहना चाहिए। और हम लोग जब ऐसा विकास करेंगे तो निश्चित रूप से जनता नाराज होगी। और जो टिहरी शहर था, ऐतिहासिक शहर, पूरा दफन हो गया। तो आज भी लोग जब उस टिहरी शहर को याद करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ की जो परंपरा है उत्तराखंड राज्य की, वो बहुत अच्छी परंपरा है। और वो ये परंपरा है कि हम प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं, हम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते ऐसा विकास जो हमारे ऑक्सीजन को कम कर दे, हमारी हरियाली को कम कर दे और हमारे जीवन के तरीकों को बदल दे। आज भी जो हमारे यहाँ परंपरागत गायन है, जो परंपरागत पहनावा है, जो परंपरागत लोकगीत है और जो खाद्यान्न है, जो खाने की, आप देखें ना, हमारे यहाँ जवार, बाजरा, बहुत सारी ऐसी पर्वतीय जो डिश हैं, वो बड़ी लोकप्रिय हैं और वो लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो उस परंपरा को हम मरने नहीं देना चाहते और यहाँ के लोग इस परंपरा में जीना चाहते हैं। तो सरकार विकास के नाम पर कम से कम हमारी परंपरा को नष्ट न करे, कम से कम हमारी जो हमारी धरोहर है उसको नष्ट न करे। ये यहाँ की जनता चाहती है। और ये तभी हो सकता है कि जब एक ऐसा एक कानून बने जिसमें जो सौंदर्य है प्राकृतिक, उसको नुकसान पहुंचाए बिना युवा को रोजगार दिया जाए और यहाँ की धार्मिक आस्था कायम रहे, साथ साथ यहाँ का जो विकास है वो उसी जो पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार हो और मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र के अनुसार हो, तभी यहाँ की जनता संतुष्ट होगी। और वरना ये चलता रहेगा कि हम असंतोष के जीवन से जीते रहेंगे। और जो आर्थिक जो नुकसान है, आज हमारे पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। सरकार 500 करोड़ प्रति माह लेकर के उधार वेतन दे रही है कर्मचारियों को, तो कैसे डेवलप हो पाएगा, कैसे हम जीवित रह पाएंगे। तो ये 2022 का जो चुनाव है, सर आपने शायद अपना माइक बंद कर दिया है, इसलिए हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। श्री गोपाल नारसन सर, आपने अपना माइक बंद किया है, इसलिए हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। गोपाल नारसन जी।
जी 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 हाँ, यस सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने काफी अच्छी जी जानकारी दी और पूरा जो चुनावी ब्यूरो अपने पूरे 5 जो मुख्यमंत्रियों का जो भी था पूरा चुनावी ब्यूरो ने प्रस्तुत किया। एंड यू आल्सो जी 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 टेल्ड अबाउट द मैनिफेस्टो, various kind of the आपका भी changes, बहुत बहुत and धन्यवाद, थैंक यू। alternatively after 5 years the government is changed again, BJP Congress. But जी जी in 2022 we'll see that what kind of the scenario we'll face and what kind of the result we will find. वो तो भविष्य के गर्भ में हमें किस प्रकार के नतीजे और परिणाम मिलते हैं, ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन आपने जिस तरीके से प्रमुख मुद्दों को आपने बताया और उन सारे मुद्दों के जरिए आपने इस आज के वेबिनार को के जरिए प्रतिभागियों को समझाने जी का जी प्रयास किया, वो काफी सराहनीय। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द पारुल यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द पारुल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, वी थैंक यू वेरी जी मच जी सर, एंड वी वांट टू सी यू अगेन एंड अगेन ऑन PU webinar platform on 4th as well as on 11th on other topic which is related from the Uttarakhand. So we are also thankful to our technical team जिन्होंने कि बिना किसी टेक्निकल ग्लिचेस के हमारा ये वेबिनार बिल्कुल सही तरीके से संपन्न करा है। वी आल्सो थैंक टू ऑल एंड वी आल्सो थैंक टू आवर फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने रात दिन लगकर इस वेबिनार को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया। We also thank to all the members who directly or indirectly associate with this organize this webinar. So we thankful to all. And again, I thank you very much, sir. Thank you very much, sir, on behalf of the Parul Institute, on behalf of the Parul Institute management, on behalf of the Parul University president, sir, vice chancellors, and registrar, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.